سری نگر کے گوسو کھمبر میں ملیٹنٹوں اور فورسز کے درمیان جھڑپ جاری۔ شالیمار میں مختصر جھڑپ کے دوران پولیس نے ایک ملیٹنٹ کو کیا جام بحق کرنے کا دعویٰ۔ مارے گئے ملیٹنٹ پر 12 افراد کو ہلاک کرنے کا الزام۔ پولیس نے لشکر ملیٹنٹ سلیم پرے کی ہلاکت کو بتایا سب سے بڑی کامیابی۔ سری نگر کے للدید ہسپتال میں چائے پانی کے نام پر رشوت کا بازار گرم۔ چائے نہ دینے کے بعد پیدا حالات کے دوران نوزائیدہ بچے کی پراسرار موت۔ لواحقین نے اسپتال کے سہل میں سیکیورٹی عملے کے خلاف کیا احتجاج۔ انتظامیہ نے کارروائی کر کے 2 سیکیورٹی اہلکاروں کی برطرفی کو دی منظوری۔ اور جموں کشمیر میں 15 سے 17 سال کی عمر والے بچوں کو ٹیکہ لگانے کی مہم شروع۔ گورنر نے اومیکران کے خطرے سے جموں کشمیر کو بتایا محفوظ۔ سری نگر میں وی وی گگن نے کووڈ مخالف ٹیکہ لگانے کی مہم کو کوٹھی باغ سکول سے کیا آغاز۔ 8,33,000 بچوں کو 8 دن میں ویکسین لگانے کا ہدف مقرر۔ اور ارسلان فیروز کے والدین نے محبوبہ مفتی سے کی ملاقات۔ محبوبہ نے ارسلان کی رہائی کے لیے داخلہ وزیر کو مکتوب روانہ کرنے کا دیا یقین۔ لال بازار کے تاجر کی پی ڈی پی میں شمولیت پر محبوبہ نے کیا استقبال۔ کہا 1 جنوری کا احتجاج حد بندی کمیشن ہی نہیں سبھی ناانصافیوں کے خلاف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام گراؤنڈ رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال ہانجور کے ساتھ، اور گراؤنڈ رپورٹ میں ابھی تک کی سب سے بڑی خبر شہری سری نگر سے، کیونکہ شہری سری نگر کے شالیمار علاقے میں آج انکاؤنٹر ہوا اور وہاں پر فوج نے ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی گوسو کھمبر کا علاقہ جو کہ بالکل شالیمار سے بالکل آگے علاقہ ہے، جہاں پر ابھی جھڑپ جاری ہے، اور اس جھڑپ میں کیا کچھ ہوا ہے وہ ہم اس حوالے سے مکمل تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ اس پر سنم اعجاز ہمارے ساتھ جڑیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جو آج سری نگر کے اندر انکاؤنٹر ہوا، ایک مختصر انکاؤنٹر ہوا، اور اس میں پولیس نے ایک ملیٹنٹ کو جام بحق کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور پولیس کا ماننا ہے کہ سلیم پرے نامی ملیٹنٹ جس پر لگ بھگ 12 کے قریب افراد کو جام بحق کرنے کا الزام ہے، اور پولیس کا ماننا ہے کہ سال 2016 میں جب جموں کشمیر کے اندر ایجیٹیشن چل رہی ہے تو اس کے بعد اسی سال میں مذکورہ ملیٹنٹ یعنی سلیم پرے پر 12 افراد کو جام بحق کرنے کا الزام لگا تھا، اور پولیس نے آج اسے ایک انکاؤنٹر کے دوران شالیمار کے اندر جام بحق کرنے کو بڑی کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ مذکورہ ملیٹنٹ سلیم پرے کا تعلق لشکر طیبہ ملیٹنٹ تنظیم سے بتایا جا رہا ہے، اور شالیمار باغ کے اندر ہی آج ایک مختصر جھڑپ کے دوران اسے جام بحق کیا گیا ہے۔ آئی جی پی کشمیر نے اس انکاؤنٹر کے حوالے سے شالیمار کے جو گارڈن ہے اس کے اندر جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس پر آئی جی پی کشمیر نے کیا کچھ کہا ہے پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد گوسو میں کیا کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن آئی جی پی کشمیر نے کیا کہا ہے آئے دیکھتے ہیں۔ جوائی کارروائی میں سلیم پرے مارا گیا، پولیس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ وہی سلیم پرے ہے جو 2016 کے الیکشن میں 12 ملین کا گلا کاٹ دیا تھا۔ سر یہ کب سے ایکٹیو تھا اور کم سے کم 2 درجن جیسا کلنگ ہے، اور 1 چلے ناظرین، آپ نے دیکھا آئی جی پی کشمیر جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سلیم پرے جن کا تعلق لشکر طیبہ ملیٹنٹ تنظیم سے بتایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو اس مختصر جھڑپ کے دوران جام بحق کیا گیا ہے، اور پولیس کا ماننا ہے کہ یہ پولیس کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن گوسو کے علاقے میں، گوسو کھمبر کے علاقے میں بھی ایک اور جھڑپ ابھی جاری ہے۔ یہاں پر بھی گولی کی آواز سنائی دی گئی تھی، اور اس کے بعد فوج ہو، پولیس ہو، سی آر پی ایف ہو، انہوں نے اس علاقے کو محاصرے میں لیا ہوا تھا۔ ویژولز آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے کیا کچھ تفصیلات ہیں سنم اعجاز اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ سنم، پولیس نے اس انکاؤنٹر کی یعنی دوسرے انکاؤنٹر کی بھی تصدیق کی ہے، جب پولیس نے ٹویٹ کیا
तो इस एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ तफसीलात अभी तक मौसूल हुई हैं जहां तक गोसू खिंबर का ताल्लुक है? देखिए, बिल्कुल गोसू शालीमार का जो एनकाउंटर हुआ यहां से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जब आप शालीमार से हरवन की तरफ जाते हैं तो चिनार से लेफ्ट साइड का जो इलाका निकलता है, खिंबर की तरफ जो रास्ता जाता है, तो उसी साइड पे गोसू का छोटा सा गांव पड़ता है। वहां पे दूसरा एनकाउंटर हुआ और ये एनकाउंटर ठीक उस वक्त हुआ जब आईजी कश्मीर जो है शालीमार में निषाद गार्डन के बाहर, शालीमार गार्डन के बाहर ब्रीफ कर रहे थे इस हवाले से जो शालीमार गार्डन में एनकाउंटर हुआ था। तो उस हवाले से जैसे ब्रीफ उन्होंने किया, वहां से मीडिया के लोग निकले। 5 मिनट हुए थे कि दूसरा ट्वीट पुलिस का आ गया और उसमें बताया गया कि एक और एनकाउंटर हुआ है और वो एनकाउंटर जो है वो बताया गया कि हरवन के इलाके में। और जब क्रॉस चेक किया गया तो मालूम हुआ ये गसू के इलाके में हुआ है, गसू खिंबर के इलाके में, बटपोरा गसू जिसे कहा जाता है। तो वहां पे जो एनकाउंटर है वो अब मुकम्मल हो चुका है। वो भी एक छोटा सा करीबन आधे घंटे का एनकाउंटर रहा और उस एनकाउंटर में फौज का, पुलिस का दावा है कि एक मिलिटेंट मारा गया और उससे उन्होंने जो मटेरियल, यानी आप जो ये तफसीलात दे रहे हैं गोसू एनकाउंटर में आप बता रहे हैं कि मजीद एक मिलिटेंट को मारा जा चुका है, क्या इसकी बिल्कुल 2 मिलिटेंट की जानिब से? देखिए, कुल मिला के शालीमार से लेके गोसू तक जो 2 एनकाउंटर हुए, पहला ब्रीफ शूट आउट था, दूसरा भी हम कहेंगे छोटा सा एनकाउंटर था, एक आधे से पौने घंटे का एनकाउंटर था। इनमें दोनों में कुल मिला के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। एक की शिनाख्त हो चुकी है, ये हाजिन का सलीम परे है जो लश्कर तैयबा से वाबस्ता पुलिस ने, फौज ने बताया और बताया कि लॉन्ग सर्विंग मिलिटेंट था। और दूसरे की अभी आइडेंटिफिकेशन पुलिस जराये से नहीं हो सकी है, उस पर पुलिस जराये उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रही है। और ये एनकाउंटर जो दूसरा है लगभग इस वक्त खत्म हो चुका है। टोटल में जो फोर्सेज होते हैं उसके बाद जो एनकाउंटर के बाद जो सिचुएशन रहती है उस हवाले से अभी इलाके में फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। ओवरऑल एनकाउंटर जो है वो खत्म अब हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम पूरी जानकारी देने के लिए। यानी दूसरा जो एनकाउंटर है जिसमें अभी तक गैर सरकारी इतलात, गैर मुसद्दिका इतलात यही मिल रही हैं कि मजीद एक मिलिटेंट को जाम बहक किया गया है। ताहम अभी इस हवाले से पुलिस और जो ऑफिशियल वर्जन है उसका अभी भी इंतजार है। आपको बताते चले कि 2 एनकाउंटर शहरी श्रीनगर के आउटस्ट्रिक्स में आज हुई हैं और इसमें सलीम परेख के हवाले से भी जो शालीमार के अंदर एनकाउंटर के दौरान मारा गया है उस पर जो इल्जामात है, पुलिस का मानना है कि उसको पेश नजर ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करेंगे श्रीनगर के लालाजद हॉस्पिटल की। जनाना हॉस्पिटल भी इसे कहा जाता है क्योंकि इस हॉस्पिटल के साथ जम्मू कश्मीर के, खासतौर पर कश्मीर वैली का जो गरीब तबका है, काफी वाबस्तगियां हैं। क्योंकि आज अलग सुबह ही यहां पर एक नवजायद बच्चे की पुरस्कार मौत हुई है और वालिदैन का इल्जाम है कि जो यहां उस वार्ड में या लेबर रूम में जो तैनात सिक्योरिटी के एहलकार है उन्होंने उससे 1000 रुपए का तकाजा किया और 1000 रुपए की शर्त पर उससे बच्चे को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इजाजत दी गई है। यानी उनका मानना है कि उसी सूरत में उनको इजाजत मिलती अगर उनके पास 1000 होता है, लेकिन उन्हें 800 रुपए दिए थे। ये वालिदैन का इल्जाम है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नहीं छोड़ा गया है। मज़कूरे बच्चे के बारे में बताया जाता है कि पैदा होने के बाद वो बीमार थे और उससे मजीद कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर साहब को दिखाना था, लेकिन यहां पर जो सिक्योरिटी के अधिकारी हैं उन्होंने उसे आगे जाने की इजाजत नहीं दी, इस शर्त पर कि आपका बच्चा पैदा हुआ है और मिठाई के नाम पर, चाय के नाम पर आप हमें 1000 रुपए दीजिए। ये मुतालबा किया गया था, ये तकाजा किया गया था सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से जो उस वार्ड में वहां पर तैनात थे, लेकिन मज़कूरा शख्स के पास 800 रुपए ही थे। नतीजा ये हुआ कि उसको रोका गया। जब उसको रोका गया तो वो कंसल्टेशन नहीं ले पाया। जब कंसल्टेशन नहीं ले पाया तो नतीजा ये हुआ कि बच्चे की मौत वाक़ा हुई है। लेकिन हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि ये जो आप एहतजाज देख रहे हैं और इस एहतजाज के दौरान उनने ये जो मुजाहिरीन थे या जो लवाहिकीन थे उन्होंने इल्जाम मज़कूरा सिक्योरिटी एहलकारों पर लगाया जो वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उन्हीं की वजह से बच्चे की मौत वाक़ा हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि बच्चा पहले से ही बीमार था। लेकिन बच्चे के मौत की जो भी वजूहात बनी हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम आज इस मामले को लेकर इस वजह से बात कर रहे हैं कि लालाजद अस्पताल में इलाज और मुआवजा सरकार दावा कर रही है कि मुफ्त फराहम की जा रही है और वादी कश्मीर का एक बड़ा जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, वो इस अस्पताल से तिबी सहूलियात जो है हासिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल के तई ये सितमज़रीबी की बात है कि यहाँ चाय पानी
या मिठाई के नाम पर रिश्वतखोरी का बाजार काफी वक्त से गर्म है। और इस रिश्वतखोरी में न सिर्फ नर्सेज बल्कि सिक्योरिटी के जो लोग यहां पर हैं, हालांकि यहां जो सिक्योरिटी के एहलकार तैनात किए गए हैं वो प्राइवेट हैं, वो किसी प्राइवेट एजेंसी को यहां हायर किया गया है, आउटसोर्स किया गया है। तो इस वजह से यहां रिश्वत मांगी जा रही है, चाय के नाम पर, मिठाई के नाम पर। और जब रिश्वत मांगी जाती है तो उस पर कोई देखने वाला नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अस्पताल इंतजामिया ने हर किसी वार्ड में या हर किसी जगह पर, हर किसी गली में, हर किसी दीवार पर हॉस्पिटल की ये जरूर लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई तकाजा करे पैसे का, चाय का, पानी का, तो आप उन्हें ना दें। लेकिन जो सिचुएशन बनती है जब किसी का बच्चा पैदा होता है और उसके बाद बेटा हो या बेटी हो, वो वालिदैन खुशी के माहौल में जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें जब उनसे पैसा तलब किया जाता है, पैसा मांगा जाता है, तो फिर वो भी मजबूर हो जाते हैं, भले ही उनके जेब में वो पैसे हो या ना हो। इसमें भी कोई शक नहीं कि एक वालिदैन श्रीनगर के एलडी हॉस्पिटल में इस वजह से अपने पेशेंट को यहां एडमिट करता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पेशेंट का, अपनी बीवी का दाखिला लेने के लिए, और उस पैसे का बोझ कम करने के लिए वो सरकारी अस्पताल में जाता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है कि यहाँ डॉक्टर तो पैसे नहीं लेते हैं, यहाँ इलाज मुआवजा तो मुफ्त में होता है, लेकिन उन्हें ये कोई ख्याल नहीं होता है, उन्हें ये कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि यहाँ चाय पानी के नाम पर हजारों रुपए लोगों के लूटे जाते हैं। नतीजा ये है कि इस श्रीनगर के बड़े हॉस्पिटल में ये रिश्वतखोरी का जो बाजार है वो काफी गर्म है और एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इस मामले को टैकल करने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो सोमोटो एक्शन भी लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो सोमोटो कार्रवाइयां भी करती, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। आज तक इसे सिर्फ चाय पानी ये समझा गया, आज तक इसे खुशी खुशी ये समझा गया, आज तक इसे मिठाई ये समझी गई। लेकिन जब हम अंदरूनी स्तर पर देखते हैं तो एक बड़ा करप्शन है जिसमें सिक्योरिटी के एहलकार ज्यादातर यहां पर मुलविस पाए जाते हैं। आज का जो ये वाक़ा है उस पर सिक्योरिटी एहलकारों पर जो एलिगेशंस लगी हैं और उसके साथ साथ लवाहिकीन का क्या कुछ कहना है, आइए आप तक पहुंचाते हैं। वहाँ पे जो इतनी करप्शन है, कहने की बात नहीं है। वहाँ पे कहते हैं वो लोग पहले चाय दे दो, तब तक हम बच्चे को नहीं दिखाएंगे आपको। ये कहाँ का इंसाफ है? पहले चाय, किसी के पास गुजारा होता है देने का, किसी के पास नहीं गुजारा होता है। वरना प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे पास है, हम क्या प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं? हम इसलिए गवर्नमेंट अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ पे हमें सहूलियत मिलेगी, वहाँ पे हमें पैसा खर्चा ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ पे एक वाक़ा सवेरे हुआ, चाय के पैसों के बलबूते पर अपनी माँ ने अपनी जलकते जिगर को खो दिया, लेकिन उनको बोले पहले चाय दे दो, फिर हम आपको बच्चे को दिखाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की है ये एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है वहाँ पे? मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए, इसके खिलाफ ये कार्रवाई किया जाए। काम ये अगर बिचारस मजूर पेशस रोपये 10 चंदस तमिस कर पौजारन वसान क्या गो सुबह ब्रोट कन 4 बजे कह मिनट 4 बजे 45 मिनट गो ये वाक़ा तमिस आय जंग दोल दिन 15 सेकंडन मज नीव तमिस बचस खन मज तुल तमिस जून ये डेली बेसिस पे डेली कंटिन्यू हर कस, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे कोई भी हो, रोपये 10 पे आएंगे तो आपको भी ये तजुर्बा होगा कि कैसे वहां पर दो हाथों से लूटा जा रहा है, चाय के नाम पर, मिठाई के नाम पर, खुशी के नाम पर, शुगुन के नाम पर। लेकिन ये सिस्टम बंद होना चाहिए, ये रिश्वतखोरी है और इसे देने वाले को भी समझना होगा कि ये रिश्वतखोरी है। और जो पेशेंट्स हैं या जो अटेंडेंट्स हैं उनका मानना है कि अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो फिर उन्हें गैर जरूरी तौर पर वहां पर सताया जाता है, यानी अपने पेशेंट का विजिट करने के लिए भी उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से कई बहाने बनाकर सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन्हें काफी तंग करते हैं। तो इस तरह से इस मामले को, इस शुगुन को या इस मिठाई को, इस स्वीट को या इस चाय पानी को जब तक ना हर कोई इंसान करप्शन तस्वुर करेगा तब तक ये चीज यहां से खत्म होने वाली नहीं है। आज का जो ये मामला हुआ है ये सुनने में काफी दिल दहलाने वाला है, लेकिन हकीकत में भी ये काफी दिल दहलाने वाला है।
हमने इस मामले को मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया, यानी LD इंतजामिया के साथ हमने उठाया, और उन्होंने कहा कि इसी तरह की जिस तरह से पहले हमने बताया है कि क्या क्या वाक़ा हुआ है, उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी कहा गया है कि इस तरह का वाक़ा यहाँ पर पेश आया, उसकी तस्दीक हुई है। लेकिन साथ ही साथ अब अस्पताल इंतजामिया ने यह भी कहा है कि उन्होंने मज़कूरा 2 सिक्योरिटी एहलकारों को डिसएंगेज किया है, और इस तरह से आज के वाक़े के बाद मज़कूरा दोनों एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन्हें डिसएंगेज किया गया है। एक कंप्लेंट आई थी, एक मोहम्मद अमीन नाम लेके 2 लाख कुपवारा का, कि मिसेज की डिलीवरी हो गई थी रात के 12 साढ़े 12 बजे। तो फिर उसको बाहर जब लेबर रूम से बच्चे को बाहर ले रहे थे तो वहाँ कोई सिक्योरिटी वाली 2 औरतें, हर गेट पर हमारा सिक्योरिटी का आदमी रहता है तैनात, ताकि कोई अंदर बाहर ऐसे ना आएगा। तो उसने उससे कुछ चाय पानी मांगा होगा, विच इज अगेंस्ट द रूल्स एंड अगेंस्ट द लॉ। तो इस अवस्था में क्योंकि बच्चा बीमार था, बच्चा ठीक नहीं था, उसको न्यूनेटोलॉजी वार्ड में बच्चे को पहुंचाना था। इस अवस्था में 2-3 मिनट का डिले हो गया, तो फिर बच्चे को वहां निकू में लेकर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा गुजर गया। तो इस अवस्था में क्योंकि वो बाप था, उसने यहाँ कंप्लेंट की इन राइटिंग कि मुझे इन्होंने पैसे मांगे। तो इसको आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो कि ये पैसे क्यों मांगे मुझसे और मुझे रोका क्यों बच्चा लेके। तो उस सिलसिले में हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने आज ही रिपोर्ट दिया। तो आज ही की रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंड किया कि ये जो 2 सिक्योरिटी वाली औरतें थी तैनात थी, ये गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं है, एक आउटसोर्स एजेंसी है, उन्होंने इनको यहाँ पर रखा हुआ था। तो चूंकि आपको बताते चले नाज़रीन कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोहर सिन्हा की जानिब से भी बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुल्क के अंदर अलग अलग रियासतों के अंदर ओमिक्रॉन के जो खतरे हैं वो बढ़ रहे हैं, वहीं उन खतरात के पेश नजर जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इस खतरे से अभी तक दूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि हर किसी को कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होगा और जो SOPs है उस पर अमल करना होगा, तब जाकर इस मिशन में किसी हद तक जो है कामयाबी हासिल की जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज जम्मू में 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करने के हवाले से मुहिम शुरू की गई है, उसका इफ्तिताह करने के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में मुकम्मल तौर पर 100% वैक्सीनेशन हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हफ्ते भर में 18 से जायद सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। और उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 70% वैक्सीन डोजेस दस्तयाब रखने की उन्हें यकीन दहानी कराई है। और ओमिक्रॉन को लेकर उन्होंने एक बार फिर से ये बात बताई है कि मुल्क में जिस तरह ओमिक्रॉन बढ़ रहे हैं उससे देखकर जम्मू कश्मीर इस खतरे से दूर है। और उन्होंने ऐसे वैक्सीन तैयार करने के लिए और उसके साथ साथ ऐसे अमराज का ट्रीटमेंट करने के लिए न सिर्फ डॉक्टरों का बल्कि मुल्क की सरकार का और साइंटिस्ट का भी शुक्रिया अदा किया है। तो हम भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के वैज्ञानिकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और आज जम्मू कश्मीर में भी वो अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर के हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस ने, पूरी मेडिकल फैसिलिटी ने जिस तरह से काम किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। 5 जिले हमारे 100% वैक्सीनेट हो गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते भर में 18 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इसको भी समय सीमा के भीतर वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो जाए, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी 70% वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है और कहा है कि जल्द ही बाकी भी उपलब्ध कराएंगे। कल देश भर में जिस तरह से ओमिक्रॉन
का खतरा बढ़ा है या इन्फेक्शन। इधर श्रीनगर के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विवेक भारद्वाज ने कोटीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल से आज इस मुहिम का आगाज किया, यानी वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज किया, जो 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उन्हें आज फराहम किए गए। और इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और उन्होंने कहा कि 8,33,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम हाथ में लिया गया है। और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 1600 साइट्स पर सहूलियात दस्तयाब होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजाना 1 लाख बच्चों को टीका लगाने का भी हदफ रखा है और इस तरह से 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इस हदफ को पूरा किया जाएगा। आज पूरे देश के लिए और कश्मीर के लिए भी एक बहुत ही मुबारक दिन है, क्योंकि आज से पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 8,33,000 बच्चों को हम वैक्सीन लगाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए एलजी साहब की अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में पूरा एक प्लान बनाया है। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि हाल ही में एनआईए की जानिब से अरसलान फेरोज नामी एक नौजवान को हिरासत में लिया गया था और उसे गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पर आज उनके वालिदैन ने जम्मू कश्मीर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महबूबा मुफ्ती से अपील की है, उनसे गुजारिश की गई है कि वो मरकजी हुकूमत से अपील करे कि वो अरसलान फेरोज की रिहाई के लिए फौरी कार्रवाई करे और उन्हें रिहाई का ऑर्डर जो है वो जारी किया जाए। जालनगर श्रीनगर के रहने वाले अरसलान फेरोज के वालिदैन की जो आज महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात हुई है, तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो मज़कूरा मामले को यानी उनके बच्चे की रिहाई के मामले को लेकर मरकजी दाखिला वजीर को एक खत रवाना करेंगे, जिस हवाले से उन्होंने एक खत रवाना भी किया है और इस हवाले से उनकी रिहाई का उनसे दरख्वास्त की गई है। फैमिली, ये अरसलान की फैमिली थी जो भी यहाँ आई थी, जिनसे हम मिली, उसके वालिद, उसकी माँ, उसकी बहन और बाकी रिश्तेदार आए थे मेरे पास, जिनका ये कहना है कि अरसलान को पहले भी 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नहीं, उन्होंने उसको हैंड ओवर किया कि पूछताछ के लिए 40 दिन तक वो बंद रहा, कभी यहाँ, कभी अनंतनाग जीआईसी में और कभी कार्गो में। उसके बाद उसको क्लियर कर दिया गया कि ये बताया गया कि इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मगर फिर अचानक 30 दिसंबर को फिर उसको गए घर और घर वालों ने फिर उसको हैंड ओवर किया। तो तब से उसके बाद कुछ बताया नहीं, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? अगर पहले क्लियर किया तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? तो इसमें इस वक्त उनको एनआईए के हवाले उस कस्टडी में है और कुछ बता नहीं रहे हैं। कहते हैं कोई ये इसका टीआरएफ का के साथ वाबस्ता है, कभी ये स्टोन पेल्टर नहीं रहा है, इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, न पास में न प्रेजेंट में। तो अगर एक इनोसेंट लड़का है, इसको इस तरह बंद। और आखिर पर जम्मू कश्मीर के मौसम से मुतल्लिक ये खबर कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है और इस हवाले से जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है और इस हवाले से कहा गया है कि 4 से लेकर 9 तारीख तक मौसम में जो है इसी तरह की तब्दीली आ सकती है कि यहाँ बारिशें भी हो सकती हैं और बर्फबारी भी हो सकती हैं, लेकिन 7 और 8 तारीख को भारी बर्फबारी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। और इस हवाले से फारूक अहमद भट्ट जो कि इंचार्ज मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वादी कश्मीर है, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि शहरी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी होगी। ताहम उन्होंने कहा कि 4 से 6 तारीख तक हल्की बर्फ और बारिशें हो सकती हैं, लेकिन 7 से 8 को दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है।
उन्होंने कहा कि बर्फबारी से जमीनी व हवाई ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर रहने की भी पेशन गोई की गई है, जबकि बर्फानी तूफान के खतरात भी कुछ पहाड़ी इलाकों में जाहिर किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।